نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے، اور فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو خالق کائنات کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا جو لغوی معنی ہے اس کو بیان کیا کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہے۔ عقل اور شریعت کہتی ہے کہ اس چیز سے رکنا ہے، اس کام کو نہیں کرنا، تو نفس اس چیز سے رک جائے، اس کام کو نہ کرے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی بنیادی طور پر دو قسموں کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ بندے کے اوپر جتنی بھی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بندہ ان کو برداشت کرے اور ان پر صبر کرتا رہے۔ یہ ہے بدنی صبر، کہ بندے کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، بندہ صبر کرتا ہے، یہ پہلی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں بدنی صبر۔ اور دوسری قسم فرمایا کہ نفس خواہشات کرتا ہے، نفس خواہش کرتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، فرمایا کہ بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ یہ صبر کی ابتدائی طور پر دو قسموں کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ صبر اس کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خالق کائنات بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کرنے والے بندے کو جب اللہ جزا دے گا نا قیامت کے دن، جب لوگ اس کی جزا کو دیکھیں گے تو لوگ دیکھ کر حسرت کریں گے کہ اتنی جزا ہے صبر کی۔ خالق کائنات صبر کرنے والوں کو اتنا نوازتا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے جو صبر کرتا ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مصائب گھیر لیں، تو بندہ پھر بھی اس کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی رضا پر راضی رہے، تو خالق کائنات اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر صبر کے کئی موقع پیش آتے ہیں جن پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، مگر ان میں سے دو کو بیان کیا۔ فرمایا سب سے پہلا کہ نفس کی خواہشات جو ہیں ان پر قابو پانا، اور یہ جو نفس ہے بندے کو ابھارتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، نفس نے خواہش کی یہ کام کرنا ہے، تو بندہ اللہ کے خوف سے ڈرا اور اس کام کو نہ کیا، تو فرمایا پھر اس کی جزا کیا ہے؟ اس بندے کا ٹھکانہ خالق کائنات جنت میں بنا، اس کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے اور نفس کی خواہشات سے رکے رہتا ہے، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور دوسری قسم کو بیان کیا، فرمایا دوسری قسم یہ ہے کہ تکالیف اور مصائب پر صبر کرنا، ناپسندیدہ معاملہ پیش آئے تو بندہ غصے کو پی لے،
जब कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो जाहिर है इंसान है, गुस्सा आता है तो बंदा उस गुस्से को पी जाए, किसी पर गुस्सा ना करे, तो ये भी एक सब्र की किस्म है। इसके मुतल्लिक कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया वो जो खुशहाली और तंग दस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में माल को देते हैं और गुस्सा पीने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। गुस्से और सब्र के बारे में इरशाद फरमाया कि ये ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा वाक़ई होती है, यानी बंदे को गुस्सा आता है तो वहां पर सब्र करना होता है। गुस्सा आया बंदा गुस्से को पी जाए। इसके मुतल्लिक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो पहलवान हो, बड़ा मोटा ताजा हो, पहलवानी करता हो, लोगों को बिछाड़ देता हो। फरमाया जो बंदा पहलवान हो और दूसरों को बिछाड़ दे ये बहादुरी नहीं है, बल्कि बहादुर बंदा वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू पा ले। गुस्सा आया है तो सब्र करे। फरमाया जो कोई अपना गुस्सा रोकेगा कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अजाब उस बंदे से रोक लेगा, उसको अजाब नहीं देगा अल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाता है जो अपने गुस्से में मुझे याद करेगा, मुझे याद रखेगा, मैं उसे अपने जलाल के वक्त याद करूंगा और हलाक होने वालों के साथ उस बंदे को हलाक नहीं करूंगा। अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बंदे ने गुस्सा पी लिया, गुस्सा छोड़ दिया, तो इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। गुस्सा आया तो बंदा गुस्सा पी जाए, फरमाया इससे बढ़कर अल्लाह की बारगाह में कोई घूंट नहीं है तो बंदा अपने गुस्से को पी जाए। गुस्सा आया सब्र पहलू अफू दरगुजर है कि आदमी बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद वो चाहे तो बदला ले सकता है, फिर भी वो बंदा माफ कर दे। ये अजीम अमल और उलुल अज़्म रसूलों का तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ करने की फजीलत ये है कि जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए, जिस बंदे को ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत के अंदर महल बनाया जाए, उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, तो उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे तो ये उसे माफ कर दे, और जो इसे महरूम करे ये उसे अता करे, और जो इससे कता तल्लुकी करे, इससे अपना नाता रिश्ता तोड़ दे, फरमाए कि वो उससे रिश्ता जोड़े, तो ऐसे बंदे के अल्लाह गुनाह भी माफ कर देता है और जन्नत के अंदर उस बंदे के लिए महल भी तैयार किया जाता है। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि जब लोग हिसाब के लिए ठहरे हुए होंगे तो उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा, ये ऐलान करेगा जिसका अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। फिर दूसरी बार मुनादी ऐलान करेगा, निदा देगा, जिसका अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत में चला जाए। तो पूछा जाएगा वो कौन है जिसका अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है? तो मुनादी कहेगा, जो निदा देने वाला है वो कहेगा उन लोगों का अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है जो लोगों की खताओं को माफ करने वाले थे, अफू दरगुजर से काम लेने वाले थे, गुस्सा आने पर सब्र करने वाले थे। इन लोगों का अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है। और फरमाया फिर तीसरी बार मुनादी जब निदा करेगा, वो लोग जिनका अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है वो जन्नत में चले जाएं। तो फिर हजारों आदमी खड़े होंगे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये फजीलत है सब्र करने की, ये फजीलत है गुस्सा ना करने की,
गुस्सा आए तो बंदा गुस्से को पी ले, सब्र करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस बंदे को अजर से नवाजता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात भी सरापाए शफकत है। हुजूर की जात ऐसी जात है कि जिंदगी के अंदर हर चीज के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई की, अपने उम्मतियों को हर काम के अंदर तरीक़ेकार बताया कि किस काम को किस तरह करना है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के उफ़ूव की और आपके हिल्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत थी वो हिल्म और बुर्दबारी का मुजाहरा करने वाली शख्सियत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम मुआफ करते थे लोगों को। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे थे और मैं भी हुजूर अलैहिस्सलाम के हमरा चल रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे जिसके किनारे मोटे और खुरदरे थे। अचानक एक देहाती आया और हुजूर अलैहिस्सलाम की चादर को इतना जबरदस्त झटका दिया, खींचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर खराश आ गई। वो कहने लगा, अल्लाह ताला का जो माल आपके पास है, आप हुक्म फरमाइए कि उसमें से कुछ मुझे भी मिल जाए, उसमें से मुझे भी कुछ अता करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हुए, उस बंदे की तरफ तवज्जो की और मुस्कुराते हुए फरमाया कि इसे भी उस माल से हिस्सा दे दिया जाए। हुक्म दिया कि इस बंदे को भी माल अता किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक सैयदना इमाम हुसैन के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो दरगुजर का एक वाक़या, एक मर्तबा एक बांदी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वुज़ू करवा रही थी कि अचानक बांदी ने जो बर्तन पकड़ा हुआ था वुज़ू करवाने वाला, वो उसके हाथ से गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा, जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तरफ सर उठाकर देखा तो उसने अर्ज की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैंने अपना गुस्सा पी लिया। इसने फिर अर्ज की वल आफीन अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अल्लाह तुझे माफ फरमा। फिर अर्ज गुजार हुई वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया जा तू अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें अपनी इबादत का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए और इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। दुनिया व आखिरत में हमें मसाइब आलाम से आफियत नसीब फरमाए। दुनिया में कोई आजमाइश मुसीबत या परेशानी आ जाए ना तो इस पर सब्र की तौफीक अता फरमाए। आजमाइश के मौके पर बतौर ख़ास नमाज की सादत से नवाज दे। जब बंदे पर आजमाइश आए तो बंदा नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में झुके और उसकी बारगाह में इल्तिजा करे तो खालिक कायनात उसकी मुसीबत को, उसकी मुश्किल को दूर फरमा देता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कुछ बयान किया अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।